गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। So what is DNA replication? As we know, whenever the cell divides, it has a tendency to distribute its DNA into its daughter cells in equal proportion, है ना? तो सेल को जब भी डिवाइड करना होता है तो वो अपने डीएनए की एग्जैक्ट कॉपी बना देता है ताकि वो अपने डीएनए को डॉटर सेल्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सके, राइट? सो हाउ डू वी डिफाइन डीएनए रेप्लिकेशन? डीएनए रेप्लिकेशन, it is the formation of new DNA strand from existing DNA strand It is the formation of new DNA strand from the existing DNA strand, and this strand is also known as template strand. Okay, so this is how we define DNA replication. Next, DNA replication is enzymatic process. It is an enzyme dependent process, and it also requires energy. So it is enzyme dependent. And energy requiring process. Okay, and here the main replication enzyme is DNA dependent DNA polymerase. Okay, so the main enzyme is DNA dependent DNA polymerase 3. Okay, so DNA replication, it occurs in the S phase of cell cycle. It occurs in the S phase of cell cycle. ठीक है, अगर हम लोकेशन की बात करें, so prokaryotes के अंदर it occurs in the cytoplasm, and in eukaryotes it occurs in the nucleoplasm, right? So in prokaryotes it occurs in the cytoplasm itself, and in case of eukaryotes it occurs in the nucleus or nucleoplasm, right? Clear? So now let us understand the different steps of the DNA replication. फर्स्ट हम बात करेंगे ORI के बारे में. फर्स्ट इज ORI. Now what is ORI? ORI stands for origin of DNA replication. It is the point from where the DNA replication starts. It is the point of start of DNA replication or initiation of DNA replication. Okay, so अगर हम प्रोकैरियोट की बात करें तो यहाँ पे जो है सिंगल ORI होगा. In prokaryotes there is only one ORI. और अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें, there are several thousand ORI. तो यहाँ पे ज्यादा ORI होने का रीजन क्या है? बिकॉज द यूकैरियोटिक DNA is quite large and is complex. ठीक है, तो लार्ज साइज होने के कारण एक साथ जो है डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हो सकता. सो मल्टीपल पॉइंट्स पे डीएनए रेप्लिकेशन जो है स्टार्ट होता है यूकैरियोटिक डीएनए के अंदर. ठीक है, सो दैट इज व्हाई यूकैरियोटिक डीएनए हैज सेवरल ORI फॉर द डीएनए रेप्लिकेशन. ओके, नेक्स्ट, सेकंड, अब हमें पता है डीएनए को अगर बनाना है, हमने डीएनए को न्यू डीएनए सिंथेसाइज करना है, तो उसके लिए वी रिक्वायर
basic building blocks. The basic building blocks are known as the nucleotides. Okay. So first we need to activate the nucleotides. Okay. So second step is activation of nucleotides. So as we know, the DNA is made up of 4 bases, right? It is made up of 4 nucleotides. So we can say it is made up of DAMP, DGMP, DCMP, and DTMP, right? Deoxyadenosine monophosphate. So these are basically the inactivated. These are the inactivated deoxyribonucleoside monophosphates. These are the monophosphates, right? So what happens is there is addition of 2 phosphate residues in the presence of enzyme, that is phosphorylase. There will be the addition of phosphate residues in each of these nucleotides, so they become triphosphate, right? They become adenosine triphosphate, and here we have GTP, DCTP, and DCTP. Now these are the activated nucleotides. We call them deoxyribonucleoside triphosphates. These are the activated nucleotides. So इनको जो है ऐड किया जाएगा by the DNA polymerase to synthesize the new strand. Okay. Now ये जो हमारे पास एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड्स हैं, इनके 2 प्राइमरी फंक्शन है. ठीक है, इनके 2 प्राइमरी फंक्शन है. वन इज दे एक्ट एज अ सबस्ट्रेट फॉर डीएनए पॉलीमरेज. दे एक्ट एज अ सबस्ट्रेट फॉर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम. सेकेंडली इनके पास जो है जो फॉस्फेट का एडिशन हुआ है, 2 टर्मिनल फॉस्फेट्स आर देयर विच आर हाईली एनर्जी रिच कंपाउंड्स. ठीक है, विच आर हाईली एनर्जी रिच फॉस्फेट बॉन्ड्स. तो जब इनका ब्रेकेज होगा so they will provide energy for the formation of phosphodiester bond. ठीक है, 2 न्यूक्लियोटाइड्स को जब लिंक करते हैं उनके बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है. उसी बॉन्ड को बनाने के लिए जो है ये एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड जो है रोल प्ले करता है. ठीक है, सो नेक्स्ट फंक्शन विल बी फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बिटवीन न्यूक्लियोटाइड्स. ठीक है, अब हम बात करेंगे थर्ड स्टेप के बारे में, दैट इज अब डीएनए को जो है ओपन करना है. सो अनवाइंडिंग ऑफ द डीएनए हेलिक्स. थर्ड स्टेप इज अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स. ठीक है, now suppose we have double stranded DNA here. This is 3 prime to 5 prime. This is 3 prime. Okay, we have double stranded DNA. Now first enzyme जो हमारे पास रोल प्ले करता है यहाँ पे, that is the DNA helicase. ठीक है, वो यहाँ पे ORI को पहचानता है, उस पर बाइंड करता है. ठीक है, और डीएनए के जो डबल स्ट्रैंड है इनको ब्रेक कर देता है. बेसिकली ये बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इनको ब्रेक कर देता है. ठीक है, ताकि डीएनए को जो है ओपन किया जा सके फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू डीएनए. राइट, सो डीएनए हेलिकेज breaks hydrogen bonding between double stranded DNA and results in the unwinding of the DNA. Right,
सो हमारे पास क्या कंडीशन होगी आगे? तो यहाँ जो है हमारे पास डीएनए इस तरीके से ओपन हो जाएगा, राइट? दिस इज 3 प्राइम 5 प्राइम। सो जैसे ही डीएनए ओपन अप होगा तो हमारे पास एक fork like structure का formation होगा जिसको हम बोलते हैं replication fork. So this structure, Y-shaped structure, is known as replication fork. There will be the formation of replication fork. ठीक है? This is the Y-shaped structure. Y-shaped. So जैसे हमारे पास डीएनए ओपन हो चुका है तो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास जो न्यूक्लियोटाइड है वो अनपेयर्ड हो चुके हैं, ठीक है? तो दोबारा से कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग से ज्वाइन कर सकते हैं, तो उनको प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा प्रोटीन्स को बाइंड करवाना पड़ता है। These are known as single stranded binding proteins. These are known as single stranding binding proteins. इन प्रोटीन्स का क्या काम है? ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं डीएनए स्ट्रैंड्स को एंड दे प्रिवेंट कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग ऑफ द टू डीएनए स्ट्रैंड्स. ओके, नाउ you see here, so this is the DNA helicase enzyme. जैसे ही डीएनए ओपन होता है, so the portion of the DNA just opposite to the replication fork, ठीक है? यहाँ पे क्या होता है, डीएनए जो सुपर कॉइल होने लगता है, इसमें टाइट होने लगता है, ठीक है? इट रिजल्ट्स इन द ओवर बाइंडिंग ऑफ द डीएनए. तो यहाँ से जो है डीएनए जो है एकदम टाइट हो जाएगा, ठीक है? टाइट होने के कारण जो है हेलिकेज फर्दर मूव नहीं कर पाएगा, फर्दर डीएनए को ओपन नहीं कर पाएगा, ठीक है? सो टू रिलीज द टॉर्शनल स्ट्रेन हेयर, यहाँ पे जो स्ट्रेस है उसको रिलीज करने के लिए एक अनदर एंजाइम यहाँ पे रोल प्ले करेगा जिसको हम बोलते हैं टोपोआइसोमरेज, राइट? सो टोपोआइसोमरेज क्या करेगा, यहाँ पे डीएनए में सिंगल स्टैंडर्ड या डबल स्टैंडर्ड कट लगाएगा और फिर उसे डीएनए थोड़ा लूज हो जाएगा और वापस उस डीएनए को लाइगेज कर देगा, ठीक है? सो टोपोआइसोमरेज यहाँ पे क्या रोल प्ले करेगा, इट रिलीज द टॉर्शनल स्ट्रेन, ठीक है? तो यहाँ पे टोपोआइसोमरेज भी बाइंड करेगा. सो टोपोआइसोमरेज it release torsional strain by nick and seal the DNA, ठीक है? निक मीन्स कट प्रोड्यूस करेगा और उसको सील कर देगा, बाद में ज्वाइन कर देगा, ठीक है? सो दिस इज नोन एज टोपोआइसोमरेज. प्रोकैरियोट्स के अंदर इट इज आल्सो नोन एज डीएनए गाइरेज, ठीक है? डीएनए गाइरेज in case of prokaryotes, right? Now next step की ओर हम चलते हैं. Next step is primer attachment. Primer attachment. हमें प्राइमर की जरूरत क्यों है? बिकॉज डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है इट कैन नॉट इनिशिएट द डीएनए रेप्लिकेशन. ये डीएनए रेप्लिकेशन को स्टार्ट नहीं कर सकता, राइट? बिकॉज ये हमेशा 3 प्राइम एंड पे एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोटाइड के 3 प्राइम एंड पे न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता है, ठीक है? तो यहाँ पे तो 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री ही नहीं है, एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोटाइड ही नहीं है, ठीक है? सो वी रिक्वायर प्राइमर हियर. द प्राइमर इज एडेड बाय द primase enzyme, which is RNA polymerase enzyme, right? So here is the primer. This is the primer attachment. So primase enzyme जो है वो क्या करेगा, प्राइमर का एडिशन करवाएगा. प्राइमर will help in the attachment of primer. So primer is nothing basically RNA nucleotides, ठीक है, जो कि डीएनए डिपेंडेंट मैनर में यहाँ पे अटैच हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स, ठीक है? अब ये जो हमारे पास प्राइमर है इसके पास जो 3 प्राइम पोजीशन है शुगर में, उसके पास फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसके पास 3 प्राइम फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, राइट? सो इस पे जो है नया न्यूक्लियोटाइड जो है यहाँ पे अटैक कर सकता है, नया न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे जुड़ सकता है, ठीक है?
बिकॉज वो इसके 3 प्राइम एंड से ज्वाइन करके एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे जब एक न्यूक्लियोटाइड लिंक होगा, उनके बीच में एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और हमें पता है कि जो फॉस्फेट रेजिड्यूज थे, 2 टर्मिनल फॉस्फेट थे, वो ब्रेक करके जो एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, उससे जो है यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज का फॉर्मेशन होगा, राइट। सो इन दिस वे हमारे पास बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जो ऐड होने स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। ये डीएनए पॉलीमरेज जो है इनको ऐड करता जा रहा है, किस डायरेक्शन में, 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में वो ऐड करता जाएगा, राइट। सिमिलरली यहाँ भी हमारे पास प्राइमर को अटैच करना पड़ेगा, प्राइमर को अटैच करना पड़ेगा, और यहाँ भी जो है न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता जाएगा डीएनए पॉलीमरेज, राइट। दिस इज द केस। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हेलिकेज जो फर्दर डीएनए को ओपन करेगा, आगे मूव करेगा, राइट। सो हम इसको नेक्स्ट डायग्राम में बना देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जो डीएनए है ये फर्दर ओपन होगा, ये प्राइमर था, दिस इज द ओल्ड प्राइमर, ओल्ड स्ट्रैंड जो हमारे पास बना था, ठीक है। दिस इज 3 प्राइम, 5 प्राइम। Now as you can see here, अगर हम इस स्ट्रैंड की बात करें, तो टेम्पलेट स्ट्रैंड यहाँ पे हमारे पास कौन सी 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ठीक है। इस टेम्पलेट स्ट्रैंड से जो नया डीएनए स्ट्रैंड बनना है वो तो कंटिन्यूसली बनता जाएगा, बिकॉज यहाँ पे कंटिन्यूसली न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता जाएगा डीएनए पॉलीमरेज, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब प्रॉब्लम अराइजेस हियर एज द डीएनए ओपन्स अप, नाउ द डीएनए रेप्लिकेशन विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, but again we need primer because DNA polymerase cannot initiate the replication, right? So we need primer here. So again यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ता जाएगा न्यूक्लियो डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। तो यहाँ पे इस स्ट्रैंड में हम क्या देख रहे हैं, इस टेम्पलेट स्ट्रैंड में हम क्या देख रहे हैं कि जो डीएनए जो नया स्ट्रैंड है वो डिसकंटिन्यूस वे में बन रहा है, फ्रेगमेंटेड फॉर्म में बन रहा है। सो दिस फ्रेगमेंट्स, these are known as Okazaki fragments as they were discovered by Okazaki. So these fragments are known as Okazaki fragments, right? And यहाँ भी जो formation of new strand है वो 5 प्राइम 3 प्राइम डायरेक्शन में ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है। Now अगर हम कंपेयर करें इसको, this strand is known as leading strand, और जो ये हमारे पास बना है डिसकंटिन्यूस वे में, इसको बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। This is known as lagging strand, right? If we compare both these strands, तो लीडिंग स्ट्रैंड जो है ये फास्ट बन रहा है, कंटिन्यूस बन रहा है, राइट, और यहाँ पे कोई फ्रेगमेंट्स नहीं है। लैगिंग स्ट्रैंड की बात करें तो ये स्लो बनेगा बिकॉज डिसकंटिन्यूस बन रहा है, राइट। एंड यहाँ पे जो है फ्रेगमेंटेड बनेगा ये, तो बाद में जो है इनको ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन कर दिया जाएगा बाय द डीएनए लाइगेज एंजाइम, राइट। So this is it. This is this step is known as chain elongation, क्योंकि यहाँ पे नया जो है चेन बनता जा रहा है, ठीक है। So this step will be known as chain elongation. तो चेन elongation के अंदर जो हमारे पास मेन एंजाइम है that is DNA dependent DNA polymerase 3, right? So this will be performed by DNA polymerase 3. So in this way, the whole replication will proceed throughout the length of the DNA, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो प्राइमर है, क्योंकि आरएनए न्यूक्लियोटाइड है तो इनको रिमूव करना पड़ता है, ठीक है। सो रिमूव करने के लिए हमारे पास जो है डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है वो रोल प्ले करता है, वो प्राइमर्स को यहाँ से रिमूव भी करेगा और यहाँ जो गैप प्रोड्यूस होगा उसको वो फिल भी कर देगा, ठीक है। सो द प्राइमर्स आर रिमूव्ड by DNA polymerase 1, and it also fills the gap, ठीक है। सो उसके
बाद अगर कोई भी मिसमैच यहाँ पे होता है, कोई भी मिसमैच पेयरिंग यहाँ पे हो जाती है, तो उसको डीएनए पॉलीमरेज जो है वो रिपेयर कर देता है। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो भी रिपेयर कर सकता है। ठीक है, सो दैट इज नोन एज प्रूफ रीडिंग ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन। सो दिस इज द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन। आई होप यू लाइक इट। ठीक है, थैंक यू।